درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وحضرنا رمضان أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مہینہ رب تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا رمضان کا، اور رمضان کے دن کا روزہ رب تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اوپر فرض فرمایا۔ ہر چیز اپنے اندر کچھ خصوصیتیں رکھتی ہیں، ہر حکم اپنے اندر کچھ اوصاف رکھتا ہے۔ نماز ہے، الگ اس کی خصوصیات، الگ اس کے اوصاف، انسان کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے انسان کے اندر کون سی خاصیت، کون سی خوبی اور کون سی خصلت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنا یہ بھی اسلامی عبادات میں سے، مسلمانی اوصاف میں سے ایک بہت بڑی عبادت اور ایک بہت بڑا وصف ہے۔ مسئلہ اتنے کا ہے کہ ہم لوگ مسلمانی اوصاف سے بھی دور ہو گئے، ایمانی اوصاف سے بھی بے خبر ہے کہ کیا میرے رب کا حکم ہے، کیا میرے رب کا مجھ سے مطالبہ ہے، کس وقت مجھے رب کی کون سی عبادت کرنی چاہیے۔ بظاہر دیکھا جائے تو میرے اور آپ کے پاس دو چیزیں ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے۔ ایک کو ہم اسلام کہتے ہیں اور ایک کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ اسلام کی وجہ سے ہم مسلمان بنتے ہیں اور ایمان کی وجہ سے ہم مومن بنتے ہیں۔ کیا اسلام کے تقاضے ہیں؟ کیا مسلمان کی اوصاف اور مسلمانی صفات ہونی چاہیے؟ کیا انسان کے اندر ایمانی جذبات اور ایمانی اوصاف ہونے چاہیے؟ سب سے پہلی بات روزے کے متعلق کہ روزے کا تعلق اسلامی اوصاف کے ساتھ ہے، مسلمان کی خوبی اور مسلمان کی صفات کے ساتھ اس کا تعلق۔ ایک بات موٹی سی ذہن میں رکھ لیں، ایک اسلام ہے اور ایک ایمان ہے۔ اسلام کا تعلق انسان کے ظاہر سے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، یہ سارے ظاہری اعضاء اور ظاہر کے اعمال ہیں، اس کو اسلام کہتے ہیں۔
اور ایمان اس کا تعلق اندر سے ہے، اس کا تعلق باطن سے ہے۔ باطنی طور پر اپنے آپ کو انسان مضبوط کرتا ہے۔ ایمانیات کے کچھ شعبے ہیں، وہ شعبے انسان اپنے اندر پیدا کرنے کی اور ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انسان کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ نظریہ ہے، ہم ایمان کے باب میں اس کو باقاعدہ چیپٹر بنا کر پڑھتے ہیں، الایمان یزید و ینقص۔ ایمان انسان کا بڑھتا بھی ہے اور ایمان انسان کا گھٹتا بھی ہے۔ اب کب انسان کا ایمان بڑھتا ہے؟ جب انسان مسلمانے والے اوصاف، اسلامی عادات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی جس کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، جس وقت انسان ان کو بجا لاتا ہے تو انسان کے اندر کا ایمان بڑھتا ہے، پھوٹتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے۔ اور اگر انسان جسم کے جو ظاہر کے عبادات ہیں، جن کو ہم اسلامی عبادات کہتے ہیں، مسلمانی صفات کہتے ہیں، اگر اس میں انسان کمزوری اختیار کر لے تو انسان کا ایمان بھی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثلا جو بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جو 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کا ایمان کمزور۔ اسی طرح جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کا ایمان مضبوط، جو نہیں رکھتا اس کا ایمان کمزور۔ اسی طرح حج اور اسی طرح زکوٰۃ، تمام کے تمام عبادات کا تعلق۔ تو میں بات ہی کرنے لگا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس لگی ہوئی ہے، حدیث جبرائیل مشہور حدیث ہے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور سب سے پہلے حضور سے سوال کیا، مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ نہیں، اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی چند ایک چیزیں گنائی، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ 5 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی گنائی۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 ان تصوم، رمضان کا روزہ رکھنا، اور نمبر 5 ان تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اللہ تجھے توفیق دے، تیرے پاس مال ہو، زکوٰۃ اپنا تیرے پر حج فرض ہو جائے تو حج ادا کرنا، یہ بھی ایک مسلمانی کا اوصاف اور صفات۔ پھر جبرائیل امین ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے اخبرنی عن الایمان، رسول اللہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی مثال نہیں، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، وہ احد ہے، وہ واحد ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا، یہ بھی ایمانی وصف ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، نور سے بنے ہوئے مخلوق ہے، اللہ کے فرما بردار اور تابعدار ہے۔ اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اچھے اور برے تقدیر پر ایمان لانا، کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا کس کی طرف سے، مجھے اچھائی مل گئی، نعمت مل گئی، اولاد کی نعمت، مال کی نعمت، گھر کی نعمت، سواری کی نعمت، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف۔ اسی بات وقت بھول جاتے ہیں کہ
कोई चीज मिल जाए मैं कहता हूँ यार मैंने की है, मैंने की है। खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। ये जो ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल है ना, बहुत कमाल के अल्फाज है। उसी पर ईमान हो बंदे का ईमान काबिल कबूल, उस पर ईमान नहीं तो बंदे का ईमान काबिल कबूल नहीं। तमाम के तमाम हदीस की किताबें उठाकर देख लो, किताबुल ईमान, किताबुल ईमान, किताबुल ईमान। तो ये जो रोजा है जो ताला ने मुझे और आपको अता फरमाई, ये इस्लामी औसाफ में से है, मुसलमानी के औसाफ में से है। अब जो रोजा रखेगा बगैर उज़र के उसको छोड़ता नहीं है तो वो बंदा कौन? मुसलमान। अब जिसको उज़र कोई नहीं है, मजबूरी कोई नहीं है, लेकिन वो रोजा नहीं रखता तो वो इस्लाम के एक बाब और एक दरवाजे को छोड़ गया कि नहीं छोड़ गया। हदीस में आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे के बड़े सारे फजाइल बयान फरमाए, उनमें एक फजीलत ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत के बहुत सारे दरवाजे बनाए हैं, उनमें एक दरवाजे का नाम है बाबुर रैयान। क्या नाम है? बाबुर रैयान। खुसूसी तौर पर प्रोटोकॉल के साथ अल्लाह के वो बंदे जिन्होंने बगैर उज़र के जिंदगी में एक भी रोजा कज़ा नहीं किया, अल्लाह उनको उस रोजे से दाखिल करके अपनी मुलाकात कराए, जन्नत उनको अता फरमाए। क्या है ईमानी औसाफ? मैं आपसे कह रहा था कि ईमानी औसाफ चंद एक चीजों का नाम है, लेकिन जहां तक इस्लामी औसाफ है, मैं मुसलमान हूं, मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूं, मैं मुसलमान मुआशरे में रह रहा हूं, मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ, तो मेरे अंदर कौन कौन से औसाफ होने चाहिए, कौन कौन सी खूबियां मेरे अंदर होनी चाहिए, कौन कौन सी खसलतें मेरे अंदर होनी चाहिए। तो इसको बड़ी तफसील के साथ बयान किया सूरह अहज़ाब में एक आयत में रखा है। और बीबियां भी बात सुनती हैं आमतौर पर। कुछ सहाबियात अज़वाज मुतहरात में से कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में आ गई और बतौर शिकवा के, बतौर शिकायत के कि अल्लाह या रसूलुल्लाह, जब भी कुरान में अल्लाह कोई हुक्म नाजिल फरमाते हैं तो मर्दों को ही खिताब होता है, हम औरतें तो किसी गिनती में नहीं, हमें तो आज तक अल्लाह ने कोई खिताब किया ही नहीं है। हमसे बात करते हैं कि तुम यूं करो, तुम यूं करो, तुम यूं करो। जब भी बात होती है मर्दो अकीमुस्सलाह, आतुज़ ज़कात, फला फला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल पढ़ना बड़ा बेहतरीन सवाल, बहुत अच्छा सवाल। फिर अल्लाह ने ये आयत बयान फरमाई, नाजिल फरमाई, इसमें मर्दों का भी जिक्र, औरतों का भी जिक्र, मर्दों का जिक्र, औरतों का जिक्र, एक साथ दोनों चले। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशिआत वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। ये 9 सिफात कोई मर्द अपने अंदर पैदा कर ले, 9 औसाफ कोई बीवी, कोई औरत, कोई बहन, कोई बेटी, कोई माँ अपने अंदर पैदा कर ले, लफरमाते अअद्दल्लाहु लहुन मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। मैं इन औसाफ को अपने अंदर समोने वाले के लिए, इन औसाफ को अपने अंदर पैदा करने वाले के लिए अजर अज़ीम का भी ऐलान करता हूँ और मग़फ़िरत का भी ऐलान करता हूँ। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें। इस्लाम किसको कहते हैं? मैंने कहा उसका ताल्लुक किसके साथ है? जाहिर के साथ है। नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है। वल मुमिनीन वल मुमिनात, ईमान का ताल्लुक अंदर के साथ, अकीदे के साथ, अल्लाह की जात पर ईमान, उसके फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, क़यामत के दिन पर ईमान।
जज़ा व सजा पर ईमान, जन्नत पर ईमान, जहन्नम पर ईमान। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात, जैसे मुसलमान मर्द ऐसे ही मुसलमान औरतें, जैसे मोमिन मर्द ऐसे ही मोमिन औरतें। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात। कानित हम पढ़ते हैं ना दुआए कुनूत। कानित का माना होता है फरमाबरदारी करने वाला, फरमाबरदारी करने वाला। और आम फरमाबरदारी नहीं, मुफस्सिरीन ने इसका तर्जुमा किया कि अल्लाह के हर हुक्म को खुशी के साथ कबूल करके अल्लाह की फरमाबरदारी करना। वक्त होता है ना डंडे से जोर, प्रेशर है, नहीं किया तो पता नहीं क्या होगा। अल्लाह का हुक्म समझते हुए खुशी खुशी किसी हुक्म को तस्लीम करके उस हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना, ये फरमाबरदारी वाली जिंदगी, उसको कानित कहा जाता है। वल कानितीन वल कानितात। नंबर 4, वस्सादिकीन वस्सादिकात, सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरत। सच, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहली, सच तुझे निजात देने वाला और झूठ तुझे हलाकत के गड़े में डाल दे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की जो निशानी बयान फरमाई है वो सच बोलना बयान, और इस पर बहुत बड़ा, जो जिस शोबे में हो, अगर वो अपनी जिंदगी में सच बोलने वाला है तो उस सच के बदले अल्लाह उसको उस शोबे में, उस फील्ड में इज्जत और मुकाम अता फरमाए। हो सकता है शुरू शुरू में रुकावटें हो जाए, मुश्किलात आ जाए, परेशानी आ जाए, लेकिन आखिर जो अंजाम है वो हक का और सच का होता है। झूठ का कोई अंजाम सामने नहीं आता सिवाय बदनामी और सिवाय रुसवाई। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाकई रह गए थे, जाते ही हुजूर से कह रहे रसूल अल्लाह, कोई उज़र नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, बस नहीं किया। सबने कहा यार तूने जाकर सीधी सीधी गल दस कर, कोई हुजूर बयान कर लेता, हुजूर तेरे लिए दुआ कर लेते, हुजूर की दुआ तेरे हक में कबूल हो जाती, तेरे वारे न्यारे हो जाते। सुन गया किसी और की बात होती तो उसके सामने कर देता, लेकिन जिस नबी के सामने में बात करने लगा थोड़ी देर बाद अल्लाह मेरी सारी की सारी बात उन पर वाजे कर दे, फिर मुझे झूठ बोलने से क्या देते। इतनी आजमाइशें आई, इतनी मुश्किलात जिंदगी में आई, बीवी को अलग कर दो, बोलना इनके साथ बंद कर दो, कोई इनके साथ कलाम न करे, कोई इनके साथ लेन देन न करे, कोई इनके साथ सलाम दुआ खैर खैरियत इनसे ना पूछे। पूरे 40 दिन गुजर गए, 40 रातें गुजर गई, मदीने में रहते हुए कोई के सामने आने वाला नहीं, कोई उनसे सलाम देने वाला नहीं, कोई उनके खैरियत पूछने वाला नहीं। ये कोई मामूली बात है? माशरे में बंदा तन्हा रह गया, अकेले रह गए। कहते एक दिन तो गजब हो गई, मैं बाजार में जा रहा था, एक आवाज लगाने वाला आवाज लगा रहा, भाई काब बिन मालिक को कोई जानता है, काब बिन मालिक को कोई जानता है? किसी ने इशारे से कह दिया वो जानता थे। वो आया, उसने मेरे मोढ़े पे हाथ रख के मुझे गस्सान के बादशाह का एक खत दिया। जिस खत को देखते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि अब तेरे ईमान का भी इम्तिहान होना शुरू हो। अभी तो जाहिरी हालात थे। उसमें लिखा हुआ था कि हमें पता चला है कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे साथ बेवफाई की है, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें ओहदे भी देंगे, हम तुम्हें पैसे भी देंगे, हम तुम्हें सब। कहते ये देखना था, मैं तो हैरान था। वहीं से मैंने उसको उठाया और जाकर जलते तनूर में मैंने उस खत को डाल दिया। फिर जब 50 रातें पूरी हो गई, मैं अपने मकान के छत पर
बैठ कर कुरान की तिलावत कर रहा था, फजर का वक़्त था। दूर एक पहाड़ी से मुझे आवाज सुनाई दी, कौब बिन मालिक, तुम्हें खुशखबरी हो, अल्लाह ने तुम्हारे तौबा को कबूल फरमाया। और फिर कुरान नाजिल हो गया, वअला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहबत वज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम वज़न्नू अल्ला मल्जअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि सुम्मा ताबल्लाहु अलैहिम लियतूबू। कि जब जमीन उन पर तंग हो गई, अपने आप से भी वो तंग आ गए, लेकिन अल्लाह की तरफ रुजू किया, अल्लाह से तौबा तायब हो गए, अल्लाह ने उनके तौबा को कबूल फरमाया। हुजूर में बात ही करने लगा था, हुजूर की खिदमत में आ गए, कहेंगे या रसूलल्लाह, मुझे मेरे सच ने फायदा दिया और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जिंदगी भर कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। सच नहीं था। वो सादिकीन व सादिकात, मर्द भी सच बोलने वाले हों, औरतें भी सच बोलने वाले। आज तो हमारे औरत हमारे मुआशरे में झूठ बोलने को कमाल समझे जाते हैं। उसको दा लगा दिया, उसको दा लगा दिया, झूठ बोल के साथ हर तरफ झूठ ही झूठ है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा एक झूठ बोलता है, उस झूठ की वजह से उसके पास फरिश्ते 70 मील उससे दूर हट जाते हैं, उस झूठ के बदबू की वजह से। हम तो झूठ बोलने को कारीगरी समझने लगे, हम तो झूठ बोलने को खूबी समझने लगे। झूठ बकायदा सिखाया जाता है, बकायदा उसका सबक दिया जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबिया बैठी हैं, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के घर तशरीफ फरमाया, माँ अपने बच्चे को कहती, आजा तुझे कोई चीज दे दी। जब वो बच्चा पास आया, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रही है, अब माँ करती क्या है। जब दिया, उसको हुजूर दिया, हुजूर ने फरमाया, अच्छा ही देने का इरादा था, बुलाया, अगर तुम उसको वैसे बुलाती जैसे आमतौर पर माएँ करती हैं, तो उसको चीज न देने का तुम्हारे नामे अमाल में एक झूठ लिख दिया जाता। और सच अपनी औलाद को तरबियत करने का, सच की तरबियत करने का मशहूर वाक़या है हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। सच ही की बदौलत अल्लाह ने पूरे एक चोरों के गिरोह को ईमान की दौलत से नवाजा। क्या था पीछे? माँ की तरबियत थी और सच बोलना। अब तो हम बाकायदा बच्चों को ऐसे तरीके से हमारे और हमारे मुआशरे में झूठ को फैलाया जा रहा है, झूठ को आम किया जा रहा है, कभी ड्रामों के नाम से, कभी किस नाम से, कभी किस नाम से, और हमारे रगोटा में वो चीज दाखिल हो रही है, हमारे दिलो दिमाग में वो चीज बैठी जा रही है, उसको फिर हम झूठ समझते हैं। हालांकि मैंने शुरू में आपको हदीस सुनाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल कज़िब युहलिक, कि झूठ तुझे हलाक कर दे, सच तुझे निजात देने वाला और झूठ तुझे हलाक करने वाला। वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आ गई, कोई हालात आ गए, गुर्बत है, तंगदस्ती है, बीमारी है, जो भी हालात आए, बंदा समझे किसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ से। उस पर बंदा क्या करने वाला बन जाए, वावेला ना करे, उसको शोर शगल ना हो, जजा फजा ना हो। जो भी हालात आते हैं, अल्लाह खुद कुरान में फरमाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। घर में फौतगी हो गई, घर में बीमारी आ गई, घर में तंगदस्ती आ गई, घर में कोई फाका आ गया, तो मुझे और आपको अल्लाह का हुक्म क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। हम सब्र भी हाथ से धो बैठते हैं, और पहले जो नमाजी बंदा हो गए, कोई परेशानी आ गई तो नमाज भी गई, माँ फौत हो गई, बाप फौत हो गया, भाई फौत हो गया, हमारी नमाजें बड़ा अच्छा काम करते हैं, पहले नमाजें पढ़ते थे, अब जब उनको हमारी नमाजों के, हमारी दुआ की जरूरत, तो हम भी बेनमाजी हो गए।
सब मुआशरत तकरीबन किसी तरह का इस रवज पर चल रहा। मुझे मेहमान बैठे सर, पूरी पे बैठे सर, बुला देगा तो वही मेहमान तुझे पकड़ के बैठे हैं, तुझे नमाज के लिए नहीं आने दे रहे। अब तो मेरे दिल में और तड़प पैदा हो, मेरे दिल में और जज्बा और शौक पैदा हो कि अब मेरी नमाज का सवाब मेरी वालिदा को जरूरत, मेरी नमाज का सवाब मेरे वालिद को जरूरत, मेरी नमाज का सवाब मेरे फलां को जरूरत, मेरी तिलावत को फलां को जरूरत। ये चीज में ज़हन में रखो। और इबादत करने वाला, जिक्र अस्कार करने वाला, नमाजों की पाबंदी करने वाला बन। तो यार इनको साइड पे रखकर बाहर सुन ले। वल्मुतसद्दिकीन नहीं बल्कि वस्साबिरीन वस्साबिरात, सबर करने वाले मर्द और सबर करने वाली, वल्खाशिईन वल्खाशिआत, वल्मुतसद्दिकीन वल्मुतसद्दिकात, वस्साइमीन वस्साइमात, वल्हाफिज़ीन फुरूजहुम वल्हाफिज़ात। आगे भी अल्लाह ने इसी को बयान फरमाया। कल इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे। आज के कितने सामने आ गई? मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द, मोमिन औरतें, वल मुमिनीन वल मुमिनात, वल सादिकीन वल सादिकात, मर्द सच बोलने वाले, औरतें भी सच बोलने, वल साबिरीन वल साबिरात। आगे है फिर वल खाशिईन वल खाशिआत। हदीस इसी हवाले से मैंने पढ़ी थी। हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के करीब इरशाद फरमाया कि रमजान का महीना आ गया, जो बड़ी बरकत वाला है। अल्लाह ताला इसमें तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हो और अपनी रहमतें खासा नाज़िल फरमाते हैं। क्या उसका फिर नतीजा होता है? खताओं को माफ फरमाते हैं, दुआओं को कबूल करते हैं, तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं। तुम्हारे तनाफुस कैसे कहते हैं? किसी और के हिस्स में काम किया जाए, मुकाबले के तौर पर काम किया जाए। मुझे पता चल गया मेरी बहन तीसरे पारे में है, मैं उससे आगे निकलने की कोशिश करूं। उसने 2 रकअत नफल पढ़े हैं, मैं 4 पढ़ने की कोशिश करूं। उसने आज के दिन बच्चे हैं छोटे नफली रोजा रखा है, मैं कल भी रखूं, ताकि इसको कहते तनाफुस, हिर्स, अपने अंदर लालच ही बन जाए। दीन के मामले में दुनिया में ऐसी पहले ही ऐसी लालच। भाई के पास मोटरसाइकिल है तो मेरे पास क्यों नहीं है? भाई के पास गाड़ी मेरे पास क्यों नहीं है? उसके पास गाड़ी मेरे पास। दुनियावी दबार ऐसे हिर्स काफी हद तक ये दीन की बात होती है। अल्लाह तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं और देखकर फरिश्तों पर जाहिर करके फख्र करते हैं कि ही है मेरे बंदे जिनके लिए मैंने दुनिया बनाई। बस अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह को अपनी नेकी दिखलाओ, अल्लाह को अपनी नेकी दिखलाओ। और हदीस का आखिरी जुमला, बदनसीब है वो शख्स जो इस महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए। बदनसीब है वो शख्स जो इस महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए। बदनसीब है वो शख्स जो इस महीने में अल्लाह की रहमत से महरूम रहे। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपका अमल की तौफीक नसीब फरमाए। कल बात याद रखते हैं इंशाअल्लाह, यही से बात आगे लेकर। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा वाजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिना, अल्लाहुम्मा इजअल फ़ी बैनिना मवद्दतन व रहमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नह व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल व नऊज़ु बिका मिनन नार व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल। करीम अल्लाह हम सबका बैठना कबूल फरमा, सुनना सुनाना कबूल फरमा।
इस्लामी औसाफ अपने अंदर पैदा करने की तौफीक नसीब फरमा। इस्लामी आदात हमारी जिंदगियों में या अल्लाह ले आ। ईमानी औसाफ अपने अंदर पैदा करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हम सबके ईमान को मजबूत फरमा, हम सबके ईमान को मजबूत फरमा। हमारा इस्लाम हमारे ईमान को मजबूत करे, हमारा ईमान हमारे इस्लाम को मजबूत करे। अल्लाह हमें ऐसा ईमान और ऐसा इस्लाम नसीब फरमा। अल्लाह हमें एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने की तौफीक नसीब फरमा। हर एक दूसरे के दुख दर्द को अल्लाह समझने की हम सबको तौफीक नसीब फरमा। पूरे मुआशरे को इस्लामी और भाईचारगी वाला मुआशरा बना। घरों में अल्लाह सुकून पैदा फरमा, घरों में सुकून नाजिल फरमा। हर किस्म के बेसुकूनी को दूर फरमा, बेपर्दगी को दूर फरमा, परेशानियों को दूर फरमा। रब्बे करीम हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा, सनदात की हिफाजत फरमा, मुल्क के वासियों की हिफाजत फरमा, मसाजिद मदारस खानकाहें व मराकिज़ की हिफाजत फरमा। हम जितने बैठे हैं हम में से जिसके दिल में जो शरई हाजत जायज जरूरत है अल्लाह अपने खजाने घर से पूरा फरमा, अपने खजाने घर से पूरा फरमा। अल्लाह तेरे सामने हाथ उठाए हुए तुझसे मांग रहे, तू रोजेदार के रोजे की हालत में मांगी हुई दुआ को कबूल करता है। अल्लाह हम सब की दुआ को कबूल फरमा, हम सब पर रहम फरमा, हम सबको माफ फरमा, हम सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, हम सबकी छोटी बड़ी कोताहियों को माफ फरमा। तेरे से मग़फ़िरत के तलबगार है, रहमत के तलबगार है, जहन्नम से आज़ादी के तलबगार है। अल्लाह हम सब के हक में हम सबकी दुआओं को कबूल फरमा, हम सबकी दुआओं को कबूल फरमा। जो तेरे नेक बंदे दुआएं मांग रहे उसमें हमारा भी हिस्सा फरमा। हुजूर ने जो दुआएं मांगी है उसमें हमारा भी हिस्सा फरमा। जिन शुरू से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है उन तमाम के तमाम शुरू से हम सबकी हिफाजत फरमा। जिन्होंने दुआ के लिए कहा हुआ है उनके हक में हम सबकी दुआओं को कबूल फरमा, हम सबकी दुआओं को कबूल फरमा। नफ्स और शैतान के शर से हम सबकी हिफाजत फरमा, ज़ाहिर और बातिन के फितनों से हम सबकी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे बच्चों को भी कामयाब फरमा, हमारे बच्चियों को भी कामयाब फरमा। पूरे मुआशरे में कामयाबी और कामरानी को या अल्लाह आम फरमा। एक दूसरे को इज्जत और एहतराम देने वाला हमें बना, एक दूसरे का इज्जत और एहतराम देने वाला हम सबको बना। जितनी पोस्टियां हुई हैं अल्लाह तमाम के मग़फ़िरत के फैसले फरमा, तमाम के दर्जात को बुलंद फरमा। बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तक़िला नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।